Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good evening. My name is Shams Pimani and I welcome you all to another exciting and a learning episode of Facebook Live session on Career Talk organized by ICMA International for students, members, and other stakeholders. I'm very honored and happy to have Dr. Saab today with us, Dr. Muhammad Kamarul Hassan. He's the founder of Kamar Consulting, and he'll be speaking on a very, very important topic today, which is about leveraging personality type for career development and advancement. As you're aware about the session format, we'll move towards the job vacancy information, which has been announced during this week. And then on the other segment, we'll have a detailed presentation from Kamar Saab, and we'll learn about the personality types. And we are very honored that we have Kamar Saab today with us. So moving towards the presentation part. So for this week, first vacancy we have is with Government College for Women's, Sialkot. They are looking to hire for the position of treasurer. Associate member is eligible, and 30th November is the deadline. And email ID is mentioned on the screen. Government of Punjab Primary and Secondary Healthcare Department is looking to hire for financial management specialist. Associate member is eligible. It's a Lahore-based position, and 8th December is the deadline. The next position we have is with the University of Balochistan. They're looking to hire for the position of treasurer, and 8th December is the deadline. The registrar is the point of contact. Pakistan Petroleum is looking to hire a financial analyst, and associate member is eligible. 4th December is the deadline, and further details can be derived through the link which is mentioned on the screen. It's Karachi-based position. Punjab Population Innovation Funds, they are looking to hire for chief internal auditor. Associate and the fellow member both are eligible. Lahore is the location, and 8th December is the deadline. Multan Electric Power Company Limited is looking to hire for chief financial officer. Associate member is eligible, and 1st December is the deadline, and it's a Multan-based position. Audit Oversight Board is looking to hire for assistant manager finance. Chartered management accountant is eligible. It's an Islamabad-based position, and 4th December is the deadline. With this, we have few positions out through social media. So the first position is with the leading organization. They're looking to hire for manager accounts, Lahore-based position, and the email ID is mentioned on the screen. 15th is the deadline. Another leading manufacturing concern is looking to hire for female accountant. It's Peshawar is the location, and affiliate financial accountant, which is a mid-career position, is eligible. Next is with the private limited company. A chief financial officer is the job title, and Karachi is the location, and 22nd November is the deadline. Brokerage house is looking to hire for GM operations. Email ID is mentioned on the screen, and Lahore is the location. With this, we also have few vacancies out through the job placement and industrial linkage department. Dr. Saab, this is the department which is exist in all major cities in Pakistan, including Karachi, Lahore, Faisalabad, and Multan. So we have just created this particular department to engage the corporate sector organizations and to help them to find the right people for the right job. And this all services are free of cost, so the students can connect directly with the corporate sector organization. So it creates a linkages between both the sectors. So this is the great initiative by the institute. Mashallah, well done, sir. Well done. I mean, I understand. I mean, it's a very old institute, and this is the we can say that. I mean, it's a factory where all the accountants are being produced to serve Right. not only the organizations in Pakistan but to serve the organizations all over the world. And I know. I mean, ICMA enjoys a great repute, and many of my fellows and students and my family members are, I mean, are associated and affiliated with ICM. Excellent, excellent, mashallah. That's good to know.
The first position we have route through the corporate relation department is the Adamji Polymer. This is for assistant accountant. Affiliate financial accountant, which is a mid-career position, are eligible. Karachi is the location, and 23rd November is the deadline. Uh, International Packaging is looking to hire for senior officer finance. Affiliate financial accountant and chartered management accountant both are eligible, and 25th November is the deadline. Hood Pharma is looking to hire for finance officer. 24th is the deadline, and Karachi is the location. Saeed Ghani is looking to hire for accounts receivable, and 25th is the deadline. For those who have logged in for the very first time or not aware, uh, you may note the email ID of corporate relation department is crc.khi@icmap.com.pk, and you may just drop your profile with the position which you are interested on the subject line with the organization name. Lucky Textile Mill is looking to hire for the costing executive, and 27th is the deadline. Industrial and Commercial Bank of China, based at Islamabad, is looking to hire for two positions. One is for manager internal audit, and the other one is for senior manager internal audit. Uh, 25th is the deadline for Karachi. For Islamabad, the email ID is crc.isp@icp.com.pk. Kohinoor Maple Leaf Group is looking to hire for AM Finance and Costing. 27th is the deadline, and Islamabad is the location. Kesol Network Private Limited is looking to hire for financial accountant. Chartered management accountant is eligible, and 27th November is the deadline. With this note, I take the honor and privilege to introduce our today's learned speaker. We have Dr. Kamar Al Hassan with us. He's the pioneer and the leading expert on personality type. I got an opportunity to listen to a few of his videos. Mashallah, sab jagah chhaya hue hai. I've seen lots of videos on the YouTube, and definitely a very senior professional and a great personality. He talks about the different types of personality base and which helps in the performance and improvement solutions in Pakistan. And he's one of the pioneers. By qualification, he's a medical doctor having expertise in human development and research with over 24 years of professional experience, including dedicated 14 years for MBTI based management, consulting, training, coaching, and research. He's the founder and the director of Kamar Consulting Private Limited. He worked with many organizations, universities, and school. I'll just name few once I move forward to the profile, especially with the leadership and management development part, career development, employee retention, team building, parenting, and teaching effectiveness to promote better understanding of improved performance. He successfully implemented the live techniques of his performance, improving solutions in many organizations and institutions in Pakistan. Just to name very few of them, which is starting with Hinopa Motors, SSGC, State Bank of Pakistan, Central uh, Depository of Company, CDC, Trade Key, Farm Evo, Novartis, APR, Khan University Hospital, Abbott Laboratories, Martin Doe, Getz Pharma, GSK, Angro, Mobiling, MCB, Philip Morris, hence IBN, Nuts, ICRA, Berrien University, and more. The list goes on, keeping in view his the diverse experience and enrich the contribution he did for the entire corporations. So, thank you, Dr. Shah, for joining us today, and I'm very You're glad most and welcome. happy on Really behalf honored. of ICMA to join. With this note, I also welcome all the students, members, and friends, those who have joined for this particular session. The topic is very interesting. We're talking about the personality type. So do ask the question, whatever you have in the mind, taking the presence of Dr. Saab. Dr. Saab will run through a very brief presentation, and in between, if you have any questions, just drop on the Facebook or the LinkedIn, and inshallah, I'll try to incorporate once you start with the presentation part. So over to you, sir. So I'm really grateful for the, beautiful introduction, and I really don't deserve that much. I really don't know much. I'm a student of type, and
and still learning. And still, I really feel that I really don't know. I really know nothing, and there's a long journey ahead. And Alhamdulillah, now I'm associated with many associates, and I wish I am trying, I am working hard with them, and I want them to take this journey forward uh, to the rest of the life and rest of the time to the whole world, because people are really unaware about types, and the as this topic is really important, and we really need to understand people who are the most important species on this planet. And unfortunately, people are the least understood entity on this earth. But the good news is that we can really understand them well. We can not only understand their present capacities, but we can also predict their future behaviors, and also understand their past life by understanding the concepts of personality type. So, I mean, personality type is so beautiful and powerful concept that it helps in understanding human beings in so many ways. So again, thank you very much, and assalamu alaikum to all of the viewers and students and all of the people who are with me today. और मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं उर्दू में बात कर सकूँ। आई आई मैं सोचता उर्दू में हूँ, तो आई टॉक। इजाज़त देंगे सर, या आई शुड जी कंटिन्यू जी इन इंग्लिश? जी जी जी, बिल्कुल इजाजत है। एंड मेन अच्छा, पर्पस इज टू कम्युनिकेट, और आई थिंक वो बहुत हाँ, ज्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू वेरी मच मैं फॉर दिस इनपुट। मेरी या बहुत आई रियली वांट कि मैं उर्दू में बात करूं, जी और फिर लोग उसको, जिसको इंग्लिश में सुनना हो वो ट्रांसलेट करके सुने। जी जी, थैंक यू। जैसे बहुत शुक्रिया। चाइनीज करते हैं, जैसे नेपालीज करते हैं, जैसे इंडियंस करते हैं, जैसे यूरोपियंस और अमेरिकन्स करते हैं। जी 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 हमें अब आजाद होना होगा, जुबान जुबान की कैद से भी आजाद होना होगा। जी जी अच्छा जी, लेट्स बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के ज्वाइन करने का। मैं अपने जज्बात साजिश का ज्यादा अच्छा उर्दू में बयान कर सकता हूँ। आई वांट टू कंटिन्यू इन उर्दू। कुछ जुमले इंग्लिश में बोलूंगा, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, and we will have a Q&A session after 20-25 minutes. You can ask and note down, and you can refer to any question you have in your mind. This is a very very important topic for anyone in any specialty. मगर अभी हम चूंकि ICMA के प्लेटफॉर्म से बात करें, तो मैं, ये मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी लोग अकाउंट से वाबस्ता हैं वो सब अपने आप को जाने, अपने वो इंसानों को जाने। मगर मगर ये सफर जो शुरू होता है, ये अपने आप को जानने से शुरू होता है। अपने आप को जाने। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर योर सक्सेस, एंड यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स टू सर्व वेरेवर यू वर्क। आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, आपकी जो प्रोग्रेस की जर्नी है, आपकी जो कामयाबी की जर्नी है, वो आप पे डिपेंड करती है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। उसकी टेक्निक बहुत आसान है। अपनी टाइप को समझें और टाइप के थ्रू अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को डेवलप करें। टाइप क्या है ये अभी मैं आपको बता दूंगा। टाइप इज वेरी सिंपल थिंग। टाइप जो है वो समझें आपकी फितरत है। आपकी शख्सियत के दो हिस्से हैं, वन इज नेचर एंड द अदर वन इज नर्चर। वन इज नेचर, अदर वन इज नर्चर। एक फितरत और एक तरबियत। आपकी शख्सियत के दो हिस्से हैं, एक फितरत, एक तरबियत। तो जो आपकी फितरत है उसको समझने का जो बेस्ट इस वक्त स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया में अवेलेबल है वो टाइप है। और टाइप की इंपॉर्टेंस ये है कि नीदर यू कैन चूज इट नॉर यू कैन चेंज इट। ना आप अपनी टाइप को चूज कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का हूं, ना आप अपनी टाइप को दुनिया में आने के बाद चेंज कर सकते हैं। The only way to live a successful life is to understand yourself
अपनी टाइप को पहचाने, उसको डेवलप करें, अपनी खुशियों को जमा करें, अपनी खुशियों को हासिल करें, अपनी कामयाबियों को समेटें और अपने मैजिक को फैला दें पूरी दुनिया में। हम अपनी फितरत को समझे बगैर कामयाब होने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा ही है कि एक मछली अपने आप को ये जाने बगैर कि वो कौन सा परिंदा या कौन सी जानवर है वो कामयाब होना चाहे। एक शेर अपने आप को समझे बगैर जो है वो कामयाब होना चाहेगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कामयाब होने की वो बहुत कम हो जाएगी। एक परिंदा जो है अगर वो ये समझे बगैर कामयाब होना चाहेगा कि मैं एक जानवर हूं या तो मैं कामयाब हो जाऊं, तो भाई हर जानवर की कामयाबी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। मछली अलग तरीके से कामयाब होती है, शेर अलग तरीके से, लोमड़ी अलग तरीके से, मेंढक अलग तरीके से, परिंदा अलग तरीके से। भाई अपनी टाइप को समझें, टाइप के बाद आपको कामयाब होने से यानी इट विल बिकम सो इजी फॉर यू। अल्लाह ने इंसान को, खुदा बेहतरीन खालिक हैं और इंसान अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है। Allah Ta'ala is the best creator and human beings are the best creature of the best creator. तो you are born to win. आप पैदा ही एक्सेलेंस के लिए हुए हैं, आप पैदा ही एक्सेलेंस के लिए हुए हैं। यू जस्ट नीड टू नो योर टाइप, नो योर सेल्फ। पीपुल आर डिफरेंट। तो मैं आपको इस खुशखबरी से इस सेशन का आगाज करना चाहता हूं कि आप सब लोग कामयाबी के लिए डिजाइन हुए हैं और आपको बेहतरीन कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। सिवाय ओनली यू योरसेल्फ कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। कि आप अपनी कैपेसिटीज को पहले तो पहचाने नहीं और उसके बाद आप अपनी कैपेसिटीज को डेवलप ना करें। अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो नो वन केयर्स। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते, नो वन केयर्स फॉर यू। तो ये एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि और आप लोग कितना आगे जा सकते हैं ये भी आपने डिसाइड करना है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट एंड योर थिंकिंग कैपेसिटी इज योर लिमिट। your thinking capacity, your imagining capacity limits your journey। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी अपनी टाइप की यूज करें। अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ बनाया है दुनिया में, उन्होंने मुख्तलिफ काम करने। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट दिस ब्रीफ प्रेजेंटेशन। आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट कीजिएगा और we can have a Q&A session after 20 minutes। अच्छा जी, ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, मैं जल्दी जल्दी इनसे गुजरूंगा। अपने आप को जानना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। आई रियली बिलीव ऑन इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया बदल जाती है जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं। जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं दुनिया बहुत बेहतर नजर आती है आपको। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये द गुड न्यूज इज दैट नोइंग योरसेल्फ इज जस्ट अ मिनट जॉब। बिलीव मी, अपने आप को जानना बहुत आसान है। ये कुछ घंटों में आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एरा। तो भाई अपने आप को जान लें, अपनी जिंदगी आसान करें और अपने साथ, आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनकी भी जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो एक पुरानी कहावत है अब इसका दौर खत्म हो गया है। पहले अपने आप को जानना बहुत मुश्किल था, मगर after the discovery of this type discipline, it's really very easy to know yourself। यकीनन आप जो भी जिंदगी में आपकी जर्नी है, इंटरपर्सनल एक्सीलेंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, कोई भी आप किसी भी जर्नी में जाते हैं और अगर आप हमें देखें, इंसान ही फायदा पहुंचाते हैं और ये इंसान ही है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इंसानों से अगर हमें डील करना आ जाएगा तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
तो अगेन यू नीड टू नो योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। ये टाइप का फायदा ये है कि इससे आपको सिर्फ अपना आप समझ में नहीं आता। टाइप से सिर्फ आप अपने आप को नहीं जानते, बल्कि आप सारे इंसानों को पहचानते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के इंसानों को पहचानते हैं, तो उससे आपको अपना आप भी समझ आ जाता है और अपने भी समझ आ जाते हैं, और जो अपने नहीं हैं उनको भी पहचान सकते हैं आप, जो कि किसी किसी रूप में छुपे हुए हैं, उनको भी पहचान सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई आप लोग जरूर अपने आप को पहचाने। दीज आर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस। पहली चीज ये है कि आप लोगों को पहचाने, दिस इज इंटेलिजेंस। फिर आप अपने आप को जाने, दिस इज विजडम। दूसरों को मैनेज करना सीखें, दिस इज स्ट्रेंथ। मगर असल कमाल जो है ना, वो है सेल्फ लीडरशिप। सेल्फ लीडरशिप, अपने आप को लीड करें। बहुत मुश्किल काम है, बट वेरी इजी इफ यू नो योर सेल्फ बेटर। और ये टाइप आपको A to Z हेल्प आउट करती है। अच्छा जी, तो पीपल आर डिफरेंट, ये तो अब आप जानते होंगे कि इंसान मुख्तलिफ हैं। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई इंसान आसान है या मुश्किल है, तो क्या ख्याल है? अक्सर लोग तो मुझे ये कहते मिलते हैं कि भाई इंसान बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि इंसान बहुत मुश्किल है। लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टाइप्स, इंसान मुश्किल नहीं रहते। पीपल आर डिफरेंट। इंसान अल्लाह ने बनाए मुख्तलिफ हैं। सारी अजनास अल्लाह ने डिफरेंट टाइप्स में बनाई। फल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, सब्जियां मुख्तलिफ तरह की हैं, जानवर मुख्तलिफ तरह के हैं, परिंदे मुख्तलिफ तरह के हैं। तो उनकी टाइप्स को पहचान के हम उनके बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंसानों को भी अल्लाह ने टाइप्स में बनाया है। इंसानों की टाइप्स को पहचान के हम इंसानों के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी जरूर डेवलप होती है, चेंज होती है। इंसान की पर्सनैलिटी जरूर डेवलप होती है, चेंज होती है, डेवलप होती है। अच्छा उस्ताद मिल जाए, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन टाइप चेंज नहीं होती। पर्सनैलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ, इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ टाइप एंड ट्रेड्स, नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर से मिलके शख्सियत बनती है, जो कि डेवलप हो सकती है अच्छी नर्चरिंग से, लेकिन टाइप चेंज नहीं होती। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है, और इंसान जो है वो अल्लाह ने खुद कहा है कि इंसान मेरी बेहतरीन तख्लीक है। तो हम सब बेहतरीन हैं, वी ऑल आर बेस्ट। वी ऑल आर बेस्ट बट डिफरेंट। अब मैं कुछ स्लाइड आपको टाइप्स के बारे में दिखाऊंगा। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, दिस इज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अल्लाह ने फूलों को भी किस्मों में बनाए। These are the types of fruits. These are types of birds. These are types of flowers. These are types of fruits. अच्छा, ये जो टाइप्स की नॉलेज है ना, ये हमें, इट्स नॉट स्टैटिक। टाइप्स
gives us the life story. टाइप हमें जिंदगी के सफर का हाल बताती है. टाइप स्टैटिक सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती. अगर मैं कहूं कि मेरे सामने एक तितली उड़ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ दिनों पहले कैटरपिलर या आप क्या कहते हैं उसको, वो एक कीड़ा रही होगी. कैटरपिलर है या क्या, फिर वो बाद में तितली बन जाती है. इसी तरह से आप गुलाब का फूल देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ दिनों पहले एक कली रहा होगा. आप एक पका हुआ आम देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ दिनों पहले एक कैरी रहा होगा. इस तरह टाइप हमें प्रेजेंट बिहेवियर्स के बारे में भी बताती है, फ्यूचर बिहेवियर्स कैसे होंगे ये भी बताती है, और पास्ट को भी रिवील करती है. दिस इज सो पावरफुल. तो ये मेरा मकसद है, आपको टाइप की पावर बताना कि टाइप कितनी पावरफुल चीज है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसानों की भी किस्में होती हैं? जी हाँ, होती हैं. तो टाइप हमें ये पावर देती है. टाइप गिव्स अस द पावर ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स. Type gives us the power to predict traits and behaviors in all life stages. तो भाई अपने आप को क्यों नहीं जानते? हम जानना बहुत जरूरी है. जाने अपने आप को. आई डोंट बिलीव कि भाई अपने आप को जाने बगैर भी जीने का कोई मजा है. यकीन करें, अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या गलत काम कर रहे हैं. ये वक्त फिर बाद में बताता है कि मैंने अपना टाइम कहां लगा दिया. Type makes you first effective, then efficient. टाइप आपको effective बनाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर efficient बनाती है. तो मैं तो सबको ये रेकमेंड करता हूं कि भाई सबसे पहले अपने आप को जानो. And it's been alhamdulillah 19 years I am working with different communities. और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अब काफी पाकिस्तान में टाइप की अवेयरनेस आ गई है. मेरी काफी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उसको लोग देख रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे. तो अब काफी टाइप एक्सपर्ट्स भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी कर रहे हैं. तो अब टाइप प्रैक्टिशनर्स भी हम बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टाइप पढ़ाने के लिए अवेलेबल हों दुनिया में. दुनिया में भी इसके एक्सपर्ट बहुत कम है. बहरहाल, तो मेरा चूंकि अब ज्यादातर टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजर रहा है, तो लेकिन अब माशाल्लाह दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं. जी, तो इसी तरह से इंसानों की भी किस्में होती हैं. भाई ये 16 तरह के इंसान हैं. और दुनिया का कोई भी इंसान इन 16 में से किसी एक टाइप का है. देयर आर 16 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. देयर आर 16 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितने लोग हैं वो इन्हीं 16 तरह में से हैं. अगर आपको नहीं पता है आप किस टाइप के हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि बहुत जल्दी जान लें अपने आप को. आई डोंट बिलीव इट्स वर्थ लिविंग विदाउट नोइंग योर टाइप. ये सारे इंसान खूबसूरत हैं. ये 16 इंसान खूबसूरत हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं. ये 16 इंसान बहुत जबरदस्त हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं. ISTJ को हम ड्यूटीफुल कहते हैं, ISFJ को प्रोटेक्टर्स कहते हैं, INFJ को हम दी गाइड कहते हैं, INTJ आर द बॉर्न मास्टरमाइंड, बॉर्न साइंटिस्ट भी इनको कहते हैं.
INTP को लॉजिशियंस या कॉन्सेप्चुलाइजर कहते हैं. INFPs are the healers. ISFPs are the born artists. ISTPs are the craftsmen. ESTP are the activists. ESFP are the performers. ENFP are the discoverer. ENTPs are the inventor. ENTJ are the commander. ENFJ are the born teacher, born mentor. ESFJ are the host and hostesses of the world. And ESTJs are the guardians. अपने आप को आप जान लेंगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी. और ये मिनटों का काम है. विद इन मिनट्स यू कैन फाइंड योर टाइप. अब हमने एक ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल लो कॉस्ट पे रखा है, वो रिकॉर्डेड उस पे है, उससे भी आप अपनी टाइप जान सकते हैं. वीडियोस हैं नेट पे, उससे भी जान सकते हैं. आप डायरेक्ट कोचिंग भी ले सकते हैं. आप असेसमेंट सेशन करा सकते हैं. बल्कि मैं इंशाल्लाह वी विल प्लान टू डू अ सेशन आफ्टर दिस जिसमें हम आप सब लोगों की एक असेसमेंट प्लान करें. तो हर टाइप को पता चलने के बाद आफ्टर डिस्कवरिंग व्हाट टाइप वी आर, हम अपनी स्ट्रेंथ, हम अपने टैलेंट्स को पहचान सकते हैं. अच्छा, वीकनेस नहीं होती इंसानों में. इंसानों में वीकनेस नहीं होती. मछली अगर खुश्की पे नहीं चल सकती, ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसका ब्लाइंड एरिया है. वो बनी ही नहीं है उसके लिए. मछली की ये वीकनेस नहीं है कि वो खुश्की पे नहीं चल सकती, ये उसका ब्लाइंड एरिया है. वो बनी नहीं है खुश्की के लिए. तो इंसानों में ब्लाइंड एरियाज होते हैं. तो अपने ब्लाइंड एरियाज को पहचाने कि आपके ब्लाइंड एरियाज आपको पता होने चाहिए. हाँ, अपने टैलेंट्स और अपने ब्लाइंड एरियाज का पता ना होना ये बहुत बड़ी वीकनेस है. अगर आपको अपने टैलेंट्स ही नहीं पता है, अपनी कैपेसिटीज ही नहीं पता है, अपने ब्लाइंड एरियाज नहीं पता है, फिर तो आप खतरे में है ना. कहां जाके अटकेंगे क्या पता. तो खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने हर आदमी को बेहतरीन बनाया है, हर टाइप को टैलेंट्स दिए हैं, हर टाइप का एक पर्पस है, हर टाइप को अल्लाह ने एक जादू दिया है. हर टाइप को अल्लाह ने एक जादू दिया है और वो उस जादू से पूरी दुनिया को फैज पहुंचा सकती है. अल्लाह ने हर टाइप को एक जादू दिया है, एक जबरदस्त टैलेंट दिया है. वो उस दुनिया से वो उस टैलेंट से पूरी दुनिया को रंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को फैज पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं. इतनी पावरफुल अल्लाह ने इंसान को बनाया है. मगर ये वक्त हम जाया कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते. हम तजुर्बे, हिट एंड ट्रायल में टाइम वेस्ट कर देते हैं. कॉन्फिडेंस अपना लो कर लेते हैं. अपने आप को ना जानने की बिना पर हम बहुत छोटे सौदे कर लेते हैं, बहुत लो कॉस्ट पे सेटल हो जाते हैं. हमें अपनी कीमत नहीं पता, हमें अपने अपने टैलेंट्स नहीं पता. अब ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, ये एस लोग हैं. ये डिटेल्स के चैंपियन होते हैं, डिटेल्स के, है ना. नंबर्स के चैंपियन होते हैं, मेमोरी के चैंपियन होते हैं. और जो थर्ड और फोर्थ कॉलम हैं, ये विजनरीज हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं. ये दे लव थ्योरीज. अब यही इतनी बुनियादी बात है कि अगर इंसान को यही नहीं पता है कि वो एस है या एन है, तो आप बताएं. वो एस लोगों का लर्निंग स्टाइल अलग है, एन लोगों का लर्निंग स्टाइल अलग है, टैलेंट्स अलग हैं. तो अब इसमें जो कॉर्नर पे 4 टाइप्स हैं, ISTJ, ESTJ.
INTJ और ENTJ, ये जो TJ की 4 टाइप्स हैं चारों कॉर्नर पे, अब मैं आपको इनकी खूबसूरती बताऊं। दुनिया में जितने भी CEOs हैं, मोर देन 90% ऑफ द CEOs आर TJs। दुनिया में जितने भी CEOs हैं, मोर देन 95% आर TJ पर्सनैलिटी। तो अगर किसी और टाइप को CEO बनना है तो दे शुड लर्न दिस टैलेंट। तो इंसान को अल्लाह ने जो एक सबसे खास बात दी है वो ये दी है कि इंसान सिचुएशनली अपने आप को फ्लेक्स कर सकता है। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को फ्लेक्स कर सकते हैं। वी कैन लर्न टू डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन, मगर दैट इज डेवलपमेंट। डिस्कवरी के बाद आता है डेवलपमेंट। तो हमने तो डिस्कवरी नहीं की अपने आप को, तो हम डेवलपमेंट में तो बहुत परेशान होते हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। Well, this theory of personality type was discovered by Carl Jung about more than 100 years ago. किसी वजह से ये हमारे पास नहीं पहुंची, लेकिन अब पहुंच गई है और अब आप इससे फौरन फायदा उठा लें। तो अच्छा, अब ये स्लाइड भी थोड़ा सा और अगर हम डिग डाउन जाएं तो देखिए, टाइप पता चलने के बाद टैलेंट प्रिडिक्ट हो जाते हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ते। टैलेंट्स एंड ब्लाइंड एरियाज मिनटों में पता चल जाते हैं अगर आपको अपनी टाइप पता हो। अच्छा, हमारे पास आई मीन वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड विद टाइप। आप इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइप सीखेंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसमें रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें बुकलेट्स भी हैं। तो तो भाई, इंसान आसान है, इंसान मुश्किल नहीं है, मगर इंसान को अगर आप समझेंगे नहीं तो इंसान सबसे मुश्किल चीज बन जाएगा। इंसान आसान है, इंसान मुश्किल नहीं है। इंसान को टाइप्स के थ्रू बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप इंसान को नहीं समझेंगे तो यही इंसान आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब टाइप को पहचाना कैसे जाता है? ये बहुत आसान है। ये वैसे तो लेक्चर्स में काफी मेरे मौजूद है, मैं बस आपको ब्रीफली बताऊं कि आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के वर्ड को समझना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रेफरेंस। और उसके बाद आपने इन चारों डाइकोटोमीज में अपनी प्रेफरेंस को तलाश करना होता है कि आप ई हैं या आई हैं। फिर आपने एस और एन में अपने आप को ढूंढना है, टी और एफ में अपने आप को ढूंढना है, और जे और पी में। तो यू नीड टू डिस्कवर योर टाइप, डिस्कवर योर प्रेफरेंस इन दीज 4 डाइकोटोमीज। इसके बाद आपकी टाइप सामने आ जाती है। दिस इज सो सिंपल। अपनी टाइप को पहचानना, डिस्कवर करना इतना आसान है। किसी क्वेश्चनेयर की जरूरत नहीं है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट आपको आपकी टाइप नहीं बता सकता। यू नीड टू कंफर्म योर प्रेफरेंस। आपने कंफर्म करना है कि आप ई हैं या आई हैं। आपने कंफर्म करना है कि आप एस हैं या एन हैं या टी हैं या एफ हैं या जे हैं या पी। अच्छा, मैं एक और आपको खुशखबरी सुनाऊं कि जिस बहुत ही यानी कि हर टाइप के अंदर चार चार फंक्शंस होते हैं। देयर आर 4 फंक्शंस इन ऑल पर्सनैलिटी टाइप्स, जो कि इंसान की टाइप को शेप करते हैं। इनमें फर्स्ट और सेकंड आर द मेन फंक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड आर द मेन फंक्शन, जिसको फर्स्ट फंक्शन को हम डोमिनेंट फंक्शन कहते हैं और सेकंड इज द ऑक्सिलरी। ये आपके टैलेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आर योर टैलेंट। आप देखें, ये हर टाइप के फर्क है। और जो थर्ड और फोर्थ फंक्शन हैं, ये आपके ब्लाइंड एरियाज हैं।
इनसे आपने जरा बचना होता है। तो टाइप पता चलती है तो आपको फंक्शन पता चलते हैं। जब आपको फंक्शन पता चलते हैं तो आपको अपने टैलेंट्स और ब्लाइंड एरियाज अपने फंक्शंस के थ्रू पता चलते हैं। अब इस फिगर में आप देखें कि आपके जो डोमिनेंट और ऑक्सिलरी है उसका साइज नोट करें। और अगर आप किसी ऐसे कैरियर में चले गए हैं जिसमें आपका थर्ड और फोर्थ फंक्शन एंगेज हो रहा है तो आप कितने स्ट्रेस में आ सकते हैं ये सोचें। तो अच्छा कैरियर वो है जो जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इंगेज हो। रिवॉर्डिंग, जिस कैरियर में आप खुश रह सकें, एक्सेलेंस जल्दी अचीव कर सकें, ये वो कैरियर होगा जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को यूज कर सकें। तो हाउ यू कैन लेवरेज योर टाइप फॉर सक्सेस। पहले टाइप पहचाने और फिर अपने टॉप टू फंक्शंस को कनेक्ट करें अपने कैरियर से, फिर आप टाइप का कमाल देखें। हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखा देखी जो है, कभी दोस्त को देखा, कभी पड़ोसी को देखा, कभी किसी रिश्तेदार को देखा, उसके रास्ते पे चल पड़े, तुक्का लग गया तो बहुत अच्छे, नहीं लगा तो हम परेशान हो गए। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिंदगी बहुत कीमती है, इसमें खुशियां हासिल करें। अच्छा देखें, कामयाबी भी टाइप में है, खुशियां भी टाइप में है। भाई मछली खुशकी में नहीं खुश रह सकती, परिंदा पिंजरे में खुश नहीं रह सकता। आपकी खुशी भी टाइप पे चलने में है, आपका एक्सेलेंस भी टाइप पे चलने पे है। आपकी खुशी टाइप पे चलने पे है, आपकी एक्सेलेंस टाइप पे चलने पे है। तो भाई खुशियां और एक्सेलेंस, हैप्पीनेस एंड एक्सेलेंस आपकी टाइप में छुपे हुए हैं। तो अपने टाइप को पता करें, अपनी खुशियां इंश्योर करें, अपनी एक्सेलेंस इंश्योर करें। क्विक हैप्पीनेस, क्विक एक्सेलेंस व्हेन यू प्रैक्टिस योर टाइप। टाइप जान के आपको अपने डोमिनेंट और ऑक्सिलरी पता चलते हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। टर्शरी और लीस्ट प्रेफर्ड से बचना है, ये स्ट्रेस देंगे आपको, इनसे परफॉर्मेंस मीडियोकर हो जाएगी। ये देखें, जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका नेचुरल टैलेंट है। ग्रेटेस्ट नेचुरल टैलेंट इज योर फर्स्ट फंक्शन। अब हमें फर्स्ट फंक्शन ही नहीं पता अपना, अगर हमें अपना फर्स्ट फंक्शन नहीं पता तो ये कितना बड़ा नुकसान है। आप ये सोचें कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी है वो हमें नहीं पता। ऑक्सिलरी फंक्शन इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट। ऑक्सिलरी फंक्शन इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट। अब हमें अगर नहीं पता तो बड़े खतरे की बात है। और थर्ड और फोर्थ आर द ब्लाइंड एरियाज, वीक एरियाज, जो कि हमें वीक बनाते हैं। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए कि इनको हम कैरियर में मिनिमम इस्तेमाल करें। तो दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला टू लेवरेज yourself, to achieve happiness and excellence in your career by leveraging your type. This is so simple. I mean, you don't need to worry about. टाइप से देखें टैलेंट्स भी प्रोडिक्ट होते हैं और ब्लाइंड एरियाज। ये कुछ ब्लाइंड एरियाज हैं जो लिखे हुए हैं कि अगर आप इस सिर्फ इनको भी मैनेज कर लें तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। मगर टाइप तो पता होनी चाहिए ना, अगर हमें टाइप ही नहीं पता तो फिर क्या मजा। अच्छा भाई देखिए, मैं डॉक्टर आदमी हूँ भाई, मैं 10 साल मैंने आगा खान और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है, साइकेट्री सीख रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि इंसान मुख्तलिफ हैं और वो अपने आप को और अपनों को ना जानने की वजह से बीमार हो रहे हैं, तो आई क्विट साइकेट्री। मैंने साइकेट्री छोड़ी और इस मिशन पे निकल गया कि मैं लोगों को उनकी पहचान कराऊं ताकि वो बीमार ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है, नाउ इट्स बीन अराउंड 19 इयर्स, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, कोशिश कई दफा की कि कुछ और
काम करूं जिसमें ज्यादा पैसा है, लेकिन मैंने कहा चले यार, पैसा तो दुनिया बकदर मुकद्दर है, अल्लाह दे देंगे। लोगों को उनकी पहचान कराना बहुत जरूरी है। तो भाई मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को जाने। एक ये शेर मैं जरूर सुनाऊंगा अल्लामा इकबाल का कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गिराने फरंग के ऐसा, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। देखें, ये बातें शायरी में तो अच्छी लगती हैं, हमने इनको अमल में लाना है। हमने फितरत शनास बनना है और गरीबी में नाम पैदा करना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो भाई हमने अपने आप को डेवलप करना है। आज हम कहते हैं कि खुदी का मतलब क्या है। आज मुझसे लोग कहते हैं भाई हम खुदी को बुलंद तो छोड़ दें, खुदी की बुलंदी तो छोड़ दें, खुदी के मतलब से नापैद हो गए। तो भाई ये जुल्म हो गया हमारे साथ। अब हमने इससे निकलना है, अपने आप को पहचाने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुदी को बुलंद करना सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक का हक है। और टाइप जान के इसको आप अमली जामा बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो भाई ये छोटी सी एक टॉक थी, मैं बहुत ममनून हूं, आई एम सो ऑनर्ड। मैडम सनम साहिबा जिन्होंने ये सारे चीजें ऑर्गेनाइज की, आईसीएमए मैनेजमेंट के जिन्होंने इसमें हमारी सारी मेहनत की, और शम्स भाई जिन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया। और आई विश यू ग्रेट सक्सेस। और मेरी ये दुआ है कि देखें, अल्लाह ने हर इंसान को बनाया है कामयाबी के लिए। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो अवर सेल्फ to be happy and effective in this life. Great. Uh, Thank you very much, Dr. Saab, for such an insightful and a very learning slides which you share, and I think was very important. सारी चीजें इतने short time में हजम करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? To understand all the jargons, to understand all the insightful, definitely requires a detailed orientation, detailed counseling. But I believe it also gave an overview about the personality type. Just to go with the questions. Before that, I'd like to read the comments and would like to thank those who participated in the event. Zar Basha, a very senior HR professional, he said, "Thank you for the insightful info. Very interesting session." Zile Huma said, "An insightful session. Thank you, Zile Huma. Thank you, Zar." We have uh, Hamad Fazlul. Thank you, Hamad, for joining the link and joining the session. Mohammed Ali has a question with regards to his job. We have a competition department. If you are part of the CMA, do contact to respective department heads, and inshallah will be of a great help. Talking about the particular topic, or I think आपने बहुत ही इसको खूबसूरती से इसको बयान किया. Just to highlight few of the pointers in case if anyone has missed out the particular session, we started with the concept and the basic is about nurture and nature, जो कि आपकी personality का part होता है, right? Something which is we are blessed of, और जिसमें हमारा कोई राइट नहीं हम कह सकते कि जी जहाँ पर हमारी बाउंड्रीज आ जाती है, जो खुदा की तरफ से नेमत अता की गई है इन फॉर्म ऑफ बीन एन अशरफुल मखलूकात. एंड देन वी टॉक अबाउट द नर्चरिंग पार्ट जो हम अपनी पर्सनालिटी में इसको डेवलप कर सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स को समझने की कोशिश की. Then we talk about few of the things which I also have few questions in that. जिसमें हमने पेट टाइप्स की बात की, जिसके हमने बात की जी जैसे से एक फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, परिंदे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं,
फ्लावर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इस तरह से इंसान भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और चूंकि हम एक अशरफ मखलूक़ात है, हमारी पर्सनैलिटी को समझना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है। एंड वी ट्राई टू dwell into the discussion which helped us. So I have a very few basic questions which I think will help more into the topic. हमने बात की फॉर्म्स की बात की, विच आई फील कि जी एक बटरफ्लाई का आपने एग्जांपल दिया कि जी वो लार्वा से फिर एक चेंज होता है और फिर इस तरह से जो है वो एक फॉर्म में आता है। सिर्फ हमने फिर मैंगो की बात की जी कि वो राइट मैंगो होता है, फिर एक प्रॉपर मैंगो बनता है, डिफरेंट हमने बात की। सो डज द पर्सनालिटी हैज अ सॉर्ट ऑफ फॉर्म, या वो पैसेज ऑफ टाइम से ग्रो करता है, डिक्लाइन करता है? So, थोड़ा सा अगर इसके अंदर थोड़ा सा गाइड कर सके, बिकॉज हमने नहीं देखा नहीं, ये एक फॉर्म्स का एक नेचर का पार्ट है, राइट? इंसान पैदा होता है, अपनी एज में आता है, टीन एज में आता है, यंग होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें वो लर्न करता है, सीखता है। इसी तरह से हमने नेचर का पार्ट देखा। सो द टाइप इज मोर रिलेवेंट टू द फॉर्म्स, और इट्स मोर, थोड़ा सा अगर इसमें भी गाइड कर सके। यस। जी जी, देखें जिस तरह से हमने इसमें पॉइंट ये है कि जब हमें अपनी टाइप पता चल जाती है तो वी कैन यस। तो वी कैन प्रिडिक्ट यस। हम चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड सीनियर एज के बिहेवियर को, अगर हमें टाइप पता हो तो हम डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी की भी टाइप पता हो तो हम डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम परिंदों और जानवरों के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के बिहेवियर को टाइप पता हो तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मकसद ये कहने का कि अब जैसे बटरफ्लाई है, वो पूरी दुनिया में जितनी भी बटरफ्लाई हैं, दे हैव द सेम डेवलपमेंटल फॉर्मूला या डेवलपमेंटल जर्नी। आम दुनिया में जितने भी हैं, दे हैव द सेम डेवलपमेंटल जर्नी। इसी तरह से इंसान भी दुनिया में जितने भी हैं, उनकी जो 16 टाइप्स हैं, उनकी डेवलपमेंट जर्नी सेम है। राइट। जैसे कि ईएनएफपी एक टाइप है। यस। दुनिया में करोड़ों ईएनएफपी टाइप के लोग हैं, उनकी डेवलपमेंटल पैटर्न सेम है। राइट। तो अब इंसान की जो डेवलपमेंट है वो ऑफ कोर्स नेचर और नर्चर दोनों का रोल होता है उसमें। यस। लेकिन जो जेनेटिक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो टाइप से पता चल जाता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप एक आम के पौधे को बहुत नर्चर करें तो उसमें आप शरीफा नहीं उगा सकते। आप उसके अंदर जामुन नहीं उगा सकते, निकलेगा तो वेरी, आम ही निकलेगा। वेरी ट्रू। और इफ यू वांट टू हैव अ गुड मैंगो क्रॉप, अगर आप अच्छे आम उगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू नर्चर बाय नेचर। ट्रू। अगर आप अच्छे गुलाब उगाना चाहते हैं तो यू हैव टू नर्चर बाय नेचर। गुलाब जो पसंद करता है वो गुलाब को दें, गुलाब की जो फितरत डिमांड करती है वो दें। ट्रू। जब आप नर्चर बाय नेचर करेंगे तो डेवलपमेंट अच्छी होगी। यू विल बी हैविंग अ गुड क्रॉप, यू विल बी हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। तो जो डेवलपमेंट है उसके हाथ में सिर्फ दो काम है। अब इंसानों की डेवलपमेंट कौन करता है? टीचर्स और पेरेंट्स करते हैं या कुछ फ्रेंड्स करते हैं। उनका काम ये है कि वो आपकी फितरत पहचाने और आपकी टाइप पहचाने और टाइप के मुताबिक नर्चर करें। मगर चूंकि अक्सर हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमारी टाइप नहीं जानते, तो वो हमारे मुताबिक हमारी नर्चरिंग करने के बजाय जो उनको अच्छा लगता है वो उसके मुताबिक हमारी नर्चरिंग कर देते हैं।
तो sometime it works and Sometime it doesn't. sometimes it won't. तो Very true. हमने इंसानों की सक्सेस को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है कि ये जुल्म है इंसान पे। यानी ये ऐसा है जैसे कि हम सुजुकी गाड़ी को हम बेहतरीन बना दें और एक मर्सिडीज को हम कहें कि भाई पता नहीं चलेगी कि नहीं, अल्लाह ही जानता है भाई, हम्म, पता ही हमें नहीं पता। तो भाई इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इसको तो हर आदमी को अल्लाह ने कामयाबी के लिए बनाया है। तो हम अपनी गलती मानने के बजाय हमने ये गलती की कि इंसान को पहचाना नहीं, फिर दूसरी गलती ये की कि उसको उसकी टाइप पे, उसकी फितरत पे डेवलप नहीं किया, फिर हम ब्लेम भी उसी को करते हैं, तुम काम नहीं करते, तुम फेल हो जाते हो, तुम नंबर कम लाते हो, तुम आदमी सही नहीं हो। I think it was you rightly mentioned कि अगर हम personality type को समझ जाते हैं तो I think वो हमारे पास बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, and in any form, whether you are in form of parent, you are in form of son, if you are in form of employee or an employer, or in general, right? So definitely we are dealing with the humans, so it's very important कि अगर हम उन personality को समझने की, and then definitely you said कि self leadership is the first initiative to know self, and definitely अगर आपको जानेंगे तो दुनिया को जान सकेंगे उस कॉन्सेप्ट से. We are at the time on dot, but I'll just take one or two more questions, taking the advantage of your presence. जी जी। We talked about the. I had a question in mind, but definitely आपने उस phrase को change किया. Thank you to Dr. Saab, which is about questioning about how to deal with uh, difficult people. मैंने पहले लिखा था, but अब मैंने इसको change करके different people कर दिया, right? So that's the बहुत definitely शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। that's the learning. बट ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, और हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं कि लोग जो है, चूंकि हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं और प्रोफेशनल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल डोंट, हमने बहुत मतलब आप पढ़े भी होंगे, फेसबुक पे भी पढ़े होंगे, ऐसे भी इन जनरल सुनते हैं कि जी पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशन, दे लीव मैनेजर्स, राइट? सो एक मैनेजर का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है. My question to you is how to deal with the different personality of people, especially if the person is at the oversight in terms की जी आपके line manager है, आपके heads है, because when को supervise अपने subordinates को supervise करना थोड़ा सा आसान है compared to subordinate to guide uh, your supervisor or the head. So इसको इन types personality से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इस relationship को? Shams bhai, I mean, it's an excellent question and very pertinent. It relates with every one of us. देखिए, इसका एक ही जवाब है, सिंगल वर्ड, अंडरस्टैंड योर बॉस। अंडरस्टैंड योर बॉस। देखिए, 16 तरह के बॉस होते हैं, 16 तरह की टाइप्स हैं, 16 तरह के मैनेजर हैं। अपने अपने मैनेजर को पहचाने, अपने मैनेजर को पहचाने एंड टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ योर बॉस। अगर आपका बॉस आईएसटीजे है तो उससे आईएसटीजे की लैंग्वेज में बात करें, आईएनएफपी है आईएनएफपी की लैंग्वेज में बात करें। आपकी मिनटों में और घंटों में बड़ी जबरदस्त दोस्ती हो जाएगी। टाइप को पहचानना आसान है, ये घंटों की बात है। हम अपने सेशंस में ये घंटों में सिखा देते हैं कि कैसे आपने अपने डिफरेंट टाइप के लोगों को पहचानना है और फिर उनसे उनकी जुबानें बोलनी है। आपको टाइप जान के समझ आ जाता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। तो आप बॉस को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज योरसेल्फ। आप बॉस को चेंज नहीं कर सकते हैं, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। तो Excellent, बॉस को excellent. पहचाने और बॉस की लैंग्वेज में बात करें। आपको कभी भी बॉस को, आप छोड़ेंगे भी ना बॉस को, वो नहीं जाने देगा। Excellent, excellent, excellent. The one last question, I don't think if any other question is there. I'll just ask one last question, which I feel is important. Uh, Keeping in view the surveys in terms of recent surveys and everything, हमने बहुत सारी तादाद में लोगों को देखा है कि वो एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार है, डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है, राइट? और
due to external reasons most of the time, right? कि जी जॉब के इश्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर्स है, काम का प्रेशर है, और डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स का प्रेशर है. सो इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कीपिंग इन व्यू द टुडेस टॉपिक इन जर्नल, इफ यू लाइक टू गिव द गाइडेंस ऑन दिस. अच्छा देखिए, हम लोग क्योंकि एक अंधेरे में रह रहे हैं, वी आर जस्ट लिविंग इन डार्कनेस एंड वी आर रियली, और ये डार्कनेस क्यों है? ये डार्कनेस इसलिए है कि वी आर रियली एंशियस अबाउट द फ्यूचर. वी आर Yes. वेरी एंशियस अबाउट द पीपल बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड देम. हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं. लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं. So we are the lens through which we see the world. एक तो हम अपने आप, अपनी टाइप हमें नहीं पता, और जिस चीज को देख रहे हैं उसकी डाइवर्सिफाइड टाइप और अप्रिसिएशन नहीं है हमारे अंदर. तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें ले आए, अपने विजन को सही करें. पहले तो अपने लेंस को सही करें. आप ये देखें कि आपकी क्या कैपेसिटी है और क्या कैपेसिटी नहीं नहीं. है. आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते. जो नहीं देख सकते हैं उसको सीखें, जो देख सकते हैं उसको और शार्प करें. दुनिया अच्छी दिखेगी, और फिर दुनिया की टाइप्स को अप्रिशिएट करें. अब अगर नवाज शरीफ साहब ईएसटीपी हैं, तो उनसे आईएनएफपी की उम्मीद ना लगाएं. इमरान खान अगर ईएनएफजे है, तो उससे ईएसटीपी की उम्मीद ना लगाएं. जरदारी साहब अगर आईएनटीजे हैं, तो उनसे ईएनएफपी की उम्मीद ना लगाएं. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर ईएनएफपी हैं, तो उनसे आईएसटीजे की उम्मीद ना लगाएं. तो इंसान को पहचानना तो इतना आसान है. हम पहचान, नहीं पहचान के आप सोचे हमने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां मोल ली हैं इस मुल्क के अंदर. यानी घरों में तो आप, मैं तो आप किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चले जाएं, तो घरों की लड़ाइयों के सबूत वहां मिलेंगे आपको किसी भी ओपीडी में. और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो प्रिडिक्ट करती है बिजनेस एक्सीलेंस को. तो हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है अगर हम अपने बिजनेस के लोगों को उनकी टाइप्स बता दें, और उनको उनके लोगों की टाइप्स बता दें, ताकि वो उनसे अच्छा काम ले लें. Excellent, excellent. I think it was wonderful, Kamar Saab, having you today. The knowledge which you share, I think it's very So nice of important. you. It's very important. Simultaneously, I say thank you to all the participants for their contribution, for their participation, and encouraging these particular sessions. Simultaneously, thank you to Dr. Saab for sharing his thoughts, sharing So his nice. time. It was wonderful having Dr. Saab today. In case if anyone has missed out the particular session, the recording will be available on the Facebook and LinkedIn, and you may revisit at your ease. With this note, I say once again thank you to Dr. Saab on behalf of ICMA for sharing his time. Stay blessed. Any concluding So remarks? And honored. then we can. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz.